सुना है कि एक शेरनी बहुत जल्द अपने पंजे निकालकर मारने वाली है, अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने जो उसके दुश्मन हैं उनका कहना है कि इस शेरनी ने दोबारा वापसी करके बहुत बड़ी गलती की है। हम बात कर रहे हैं आर्या की, जिसका दूसरा सीजन आने वाला है। तो चलिए दूसरे सीजन के कलाकारों से मुलाकात करते हैं। ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग। तो अगर मैं मानता हूं कि अगर एक लिंक है सीजन 1 और सीजन 2 में, वो शायद मेरा किरदार मैं टफेस्ट कह सकता हूं, क्योंकि इस वजह से क्योंकि इस कैरेक्टर के पास एक्चुअली डायलॉग थे नहीं। तो 10 दिसंबर को शेरनी अपने पंजे बाहर निकालेगी। फर्स्ट सक्सेसफुल और सस्पेंसफुल सीजन के बाद आ रहे हैं आर्या 2 लेकर, और हम जितने एक्साइटेड हैं उतनी जनता भी एक्साइटेड है, क्योंकि फर्स्ट सीजन काफ़ी सस्पेंसफुल रहा। अब जानना चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ऑब्वियसली सीजन 2 देखना पड़ेगा, बट हम अभी बता सकते हैं। अभी बता देते हैं, चलो। तो 10 दिसंबर को शेरनी अपने पंजे बाहर निकालेगी। बता दिया, चलो यार, हो गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल SBS ओरिजिनल्स में आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट सीजन में हमें देखा काफ़ी सस्पेंस था, और जैसे ही कहानी एंड होने पे आई, टर्न होता नज़र आया। क्या कहना चाहेंगे सर? आपसे जानना चाहूँगी मैं, कितना कुछ होने वाला है सीजन 2 में? बता दे। हिंट दे दीजिए दर्शकों के लिए। टर्न होते ही रहेगा। नहीं, दिस इज आई थिंक व्हाट ड्रामा इज गॉट टू डू विथ conflict, and conflict has got to do with something which you don't expect. So when you are watching it, and also I think what they say is it has to be, sorry I'm using big words now, it has to be surprising but inevitable. So it's not as if it's just a turn for its sake. It's you say, when it happens you say of course, but you're yet surprised because you know that and I didn't think about it, and therefore we are hoping it's not, there's no whodunit, there's no cliffhangers of that kind, but we are hoping that at least in the story you will get engaged and you will be on your toes to try and see what happened to Arya. I think that is your investment, and what happens to Daulat, and what happens to Khan, and what happens to Shekhawat's father, and therefore all of this is what you're invested in, the characters and in their lives. So I think that's what we're hoping. It's not turning for sensationalism. It's really just to see how to put them into situations that they need to overcome obstacles. So आप क्या कहना चाहेंगे सर? Firstly, I have been waiting to hear somebody talk about season 2, because every time anybody's asked me about it, I said मैं कुछ नहीं बोल सकता. And now the way you've answered it, it's good. It is unbelievable. Thank you. My God, I am in awe of how he has done that. And I was waiting. Yeah. Did I reveal too much? I think you were just correct. Thank the you. only problem here was that when you said, sorry, I'm using big words, and you said surprising and inevitable. Which was not big enough. Not big enough. And I thought, what are you thinking of us? Sorry. I didn't mean to. You apologize just to us, though. Exactly. That was upsetting. Yeah, exactly. It was upsetting. Surprising is a big word. You're like, I'm so sorry, I'm using big words. Inevitable. It was surprising and inevitable. I thought inevitable Was big. It was big enough. That was too big. The surprising bit was really insulting. It was surprising that inevitable was also surprising. Yes. Sorry to use a big word, but it was extremely insulting. I humbly apologize for that. Anyway, so sir, it's absolutely fine. एक्चुअली हमें हिंदी के साथ इंग्लिश। अच्छा, ये पूरा वापस हिंदी में। Can you say surprising and inevitable in Hindi? चलो चकित, can't say चकित. Chakit, what is Chakit is good. Not bad. अपेक्षा और अप्रत्याशित is even better. पेट कटा श और आशुतोष राणा। मैंने बोल दी सारी की सारी हिंदी सर। बिल्कुल। ओके, तो आप कुछ कह रहे थे? नहीं, सेकंड सीजन में एक्चुअली इन्होंने सभी कुछ कह दिया है। अब दौलत के बारे में तो वो चले जाता है फर्स्ट सीजन के एंड में जेल। अब सही में 10 दिसंबर को ही पंजे बाहर निकलेंगे, बट पूरा जो प्रोसेस था बहुत ही मज़ेदार था। वापस फैमिली, मतलब जेन्युइनली मज़ा आया साथ में काम करने में। दोबारा सभी लोगों से दोबारा मुलाकात हुई, कुछ नए लोग आए, ये आए हमारे लाइफ में।
जी। और जैसे आप देख रहे हैं इनका जो एंथुजियाज्म लेवल है, इससे इतना ही था। आप बोलने का मौका ही नहीं दोगे तो नहीं सर, मैं बिल्कुल पास ऑन कर रहा हूँ सर। Taking on all the नहीं answers. सर, पास ऑन हो गया अभी। सर आप देखो जी, मैं सीजन 1 में नहीं था। नहीं, उसका दुख नहीं है मुझे। बड़े मलाल है। इनफैक्ट खुशी इतनी है कि इतना अच्छा सीरीज़ का मैं एक सीक्वल का भाग हूँ, तो जितना ही ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं उतनी मेरी हैं, क्योंकि मैं कैसे फिट होता हूँ, क्या करता हूँ, वो अहमियत रखता है मेरे लिए। जहाँ तक कहानी का सवाल है, वो तो अंदाज़ा हो गया होगा, आपने ट्रेलर वगैरह देखा होगा, उतना ही काफ़ी है। अगर सारांश के तौर पे देखें तो वही सही है कि कुछ तो कंटिन्यूएशन है पात्रों के, और मेरा जो कैरेक्टर है वो एक प्रीवियस भूमिका को लेके आगे आता है, तो वो एक कंटिन्यूटी है एक तरीके से। तो अगर आप, मैं मानता हूँ कि अगर एक लिंक है सीज़न 1 और सीज़न 2 में, वो शायद मेरा किरदार प्रोवाइड आप करता है। काफी सर चुपचाप हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? बोलना ये बोल ही नहीं देते। नहीं नहीं, रोल तो एकदम साइलेंट है, लेकिन इंटरव्यू में इतना सारी भड़ास यहाँ बिकॉज़ ऑफ निकलती है। अच्छी चीज़ आप नहीं, मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि आप हैं या बाकी दर्शक हैं, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स एज एन एक्टर स्क्रिप्ट तो पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है, अपने सीन्स बार बार पढ़े हैं, लेकिन इनके स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में रीराइटिंग होती रहती है जब शूट कर रहे हैं, फिर एडिटिंग पे भी बहुत सारी रीराइटिंग होती है, और कुछ नए किरदार आए हैं, तो मुझे भी एक्चुअली अब मैं भूल गया हूँ कि है क्या, तो मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ कि 10 दिसंबर को जब पंजे बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा। ओके, जिस तरह का माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, मैं आई कैन बेट कि ऑन सेट भी काफ़ी मजाक मस्ती होती थी, तो कॉमेडी सीरियल नहीं, यस ऑफ कोर्स। सीरीज बहुत इंटेंस और नहीं मैं सीरियस ये- कह रहा हूँ, आप मजाक उड़ा रही है। जी सर, नहीं सर। तो मैं जानना चाहूँगी ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती थी, क्योंकि सुष्मिता सेन जी थी, सबसे ज़्यादा शूट करने का मज़ा। Sushmita Sen is there, we have to be serious, huh? यस, Why? Sushmita Sen Okay, I herself beg is, to differ. yeah, part of the masti and part of the energy and part of the vibe and the liveliness of the whole post-shoot atmosphere, and in fact during shoot also. Like when we're there, it's work, but when we're not there, it's something that we're enjoying each other's company. Yeah. In fact, I was सबसे telling Akash even in one of the earlier interviews that what was nice is that it's one thing that we're working together, but it's nice that we can spend time hanging out. And I think just as life experience, life memory, that's what you're trying to create. I think more than anything else, when people come to a shooting, you want them to go back with a memory, which is a good memory, और hopefully. इनके सेट पे इस बात को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। सिकंदर सर, आपसे जानना चाहूँगी, आपका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी अहम है, लाइक इफ़ यू गो टू सी, तो कितना मुश्किल या कितना आसान था आपके लिए, और सीज़न 1 से कुछ ये था कि सीज़न 2 में हेल्प मिलेगी? नहीं, कैरेक्टर तो मेरे लिए, क्वेश्चन क्या है जरा एक और बार बताएंगे मुझे कुछ एक बार। कितना आसान या डिफिकल्ट था वो कैरेक्टर प्ले करना, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ कॉन्फिडेंट, इफ राइट, हाँ नहीं, मुश्किल डेफिनेटली, That's a very good question, Yeah. because you're playing a confidant. राइट। And that's what, so I think the question is that, are you yet the confidant? But we can't say that. नो वो नहीं कह वो नहीं सकते, कह बट मैं ये वो नहीं, डेफिनेटली, हाँ मैं ये कह रहा था कि थोड़ा मेरे लिए एक्चुअली इतना सारा काम नहीं किया है, बट डेफिनेटली मेरा, आई थिंक मैं इसे माई टफेस्ट कह सकता हूँ, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि इस कैरेक्टर के पास एक्चुअली डायलॉग थे नहीं, तो जब डायलॉग नहीं है तो वो मुझे उसे समझने में और करने में और एक्टिंग करने में ना मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, बट इसलिए मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। वन ऑफ माई मोस्ट एक्साइटिंग कैरेक्टर्स है दौलत प्ले करने के लिए, क्योंकि ठीक है ये नहीं है कि लाइंस नहीं है, बट जब लाइंस नहीं है, जब खड़े हो, फिर भी जैसे आकाश सर ने भी कहा था अभी कि वो जो द स्क्रिप्ट हैज इट एंड जस्ट द साइलेंसेस एंड होल्डिंग द साइलेंसेस एंड कैप्चरिंग द साइलेंसेस, वो जो जैसे वो कैप्चर करते हैं उसे, जो आ जाता है उसमें ठहरा वगैरह, दैट्स बहुत ही एक्साइटिंग है। मुश्किल भी था लेकिन चैलेंजिंग है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है, और हमेशा रहेगा दौलत वैसे ही।
ओके राम सर, आपसे जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि जब सुष्मिता सेन जी शूट कर रही थी, शी वॉज नॉट वेल, लाइक यू नो, ये उन्होंने कहा भी है, तो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट या मुश्किल या फिर आसान था उनके साथ एक्शन सीन स्पेशली करवाना? या No, Shushmita does not bring that onto the set. That is, she is completely, with whatever the work needs. I didn't even know till after. So she's very private as a person. So it was only later that we came to know. Therefore, full respect to her. That not for a moment that I was, sort of saying, oh, this is the problem, oh, I better be careful. There was no tension of any kind which was put onto the team from her side. So that I think is like really commendable. Because we didn't know, like whatever that she was going through, I feel at the same time that because we are very respectful to the people that we are working with and with the actors also, especially for the actors, if there was something, then I think every actor has the liberty of coming up to us and saying कि भाई ये मेरा problem है. जैसे चंद्रचूड़ का problem था, shoulder का problem था in season 1, where he had a shoulder injury. तो उसने कहा भाई मेरा shoulder injury है, तो जब action scene होगा या कुछ मेरे को धक्का मारेगी तो ये shoulder पे मत, because and then we have to be very careful about that. So I am like, though she didn't bring it up, if there was something which she would have, then she would have, सबसे ज़्यादा टीममेट्स में किसके साथ शूट करने में मज़ा आया? अगर if one name if you could give. Everybody, yeah. To be honest, everybody. I was actually thinking of something, if I may just say it. It was very interesting. I was thinking of it right now. कि as an actor मेरे लिए सबसे favorite चीज़ है world में set पे रहना. My most, जब लोग पूछते हैं ना joy, what is the most amount of joy? मेरे लिए set पे है जब मैं काम कर रहा हूँ. इनके साथ जब शूट करता हूँ, ये क्रू के साथ शूट करता हूँ, सबके साथ शूट करता हूँ, I was just thinking, it's almost confusing कि यार क्या मुझे सेट ज़्यादा अच्छा लगता है या पैकअप के बाद जब मैं इनके साथ हैंग कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है? क्योंकि एक्चुअली हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब सेम पेज पे, सब सेम शो में, सब सेम फैमिली की तरह काम कर रहे हैं, और रैप के बाद भी उतना ही मज़ा आता है. सो जस्ट इमेजिन कि what a wonderful energy that is, because for an actor to be on set and acting is the greatest thing. But over here, even after rap, it's the greatest feeling to be with everybody. Anything you would like to say? नहीं, सब कह दिया इन्होंने. नहीं, पर एक्चुअली कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है अभी मन्नूरे ने जो की है, और सारे बहुत काबिल एक्टर्स हैं. हम सब एक दूसरे से फीड ऑफ करते हैं, और आई थिंक वी हेल्प ईच अदर, improve each other's performance. I think the idea is to try and make a space which is not creatively political, which is to make a space which has not got creative ego. And if you can try and make a space like that where there is no politics of between egos, then I think that's what we try and do with everybody that we're working with. So that's what we try. ओके, तो जाते जाते जानना चाहूँगी मैं, क्योंकि टाइम अप हो चुका है, सीज़न ये यहीं पे ख़त्म होगा, आर्या यहीं पे ख़त्म होने वाली है, या सीज़न 3 भी आने वाला है? क्योंकि हमने देखा यूजुअली कहानियाँ लास्ट मोमेंट टर्न ले लेती हैं, तो क्या होने वाला है? एक हिंट दे दीजिए दर्शकों को, ताकि सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 के लिए भी एक्साइटेड रहे हम. नहीं, क्या है कि सीज़न 1 जब ऑडियंस को पसंद आई, तब हमने सीज़न 2 का ग्रीन लाइट मिला. डिज़नी प्लस हॉटस्टार ने बोला अच्छा आप सीज़न 2 बनाइए. हम सीज़न 3 भी बनाएंगे जब सीज़न 2 ऑडियंस को अच्छी लगेगी. एंड वी आर होपिंग दैट देयरफॉर दे विल लाइक सीज़न 2. व्हेन दे लाइक सीज़न 2 एंड वी गेट दैट लव is when immediately, because it will be dependent on you and the audience whether you want a season 3, because we are not here to give it to you. If you want it, then we'll give it to you very fast. Right. So it's like food. If you like that food, then you'll want more of that food. Okay, so thank you so much for interacting with us. so much. Thank you so much. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.